حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح قوم کے بت خانے میں تباہی مچا دی، اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو کیسے اور کیوں آگ سے محفوظ رکھا۔ ناظرین کرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر اور مقرب ترین پیغمبروں میں سے ایک ہے، جنہیں خلیل اللہ یعنی اللہ کے دوست کے خطاب سے نوازا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد آپ وہ پہلے نبی ہیں جنہیں توحید کی دعوت پھیلانے کے لیے مبعوث فرمایا گیا۔ یوں تو تمام انبیاء کرام کی مبارک زندگیاں پوری نسل انسانی کے لیے مشعل راہ اور اسوہ حسنہ ہیں، لیکن سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے بعد قرآن مجید میں جس شخصیت کی زندگی اور کردار کو بطور خاص اسوہ حسنہ کہا گیا ہے، وہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات پاک ہے۔ آپ علیہ السلام نے عراق، مصر، شام، فلسطین سے لے کر عرب کی صحرائی وادیوں تک توحید کی دعوت کو عام کیا، پھر اپنے مشن کی تکمیل کے لیے سرزمین عرب میں اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، شام و فلسطین میں دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام اور مشرقی اردن میں اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو مقرر فرمایا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں 69 مقامات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ آپ علیہ السلام کے نام سے قرآن مجید میں ایک سورت بھی ہے جو مکے میں نازل ہوئی۔ انہیں بار بار حنیف بھی کہا، قرآن مجید میں ان کو مسلم بھی کہا گیا ہے، اور کہا گیا کہ ابراہیم ملت حنیفہ تھے۔ اللہ نے آل ابراہیم کو کتاب و حکمت سے نوازا اور انہیں ملک عظیم عطا کیا۔ اللہ رب العزت نے انہیں خلت کا شرف بخشا، انہیں خلیل اللہ کہا اور سب امتوں میں انہیں ہر دل عزیز بنایا۔ آپ کا لقب عمود عالم، آدم ثالث، کنیت ابو محمد اور ابو الانبیاء ہے۔ ابن عساکر کے مطابق آپ کی کنیت ابو الزیفان یعنی ضیافت کرنے والا بھی ہے۔ قصص الانبیاء اور طبقات ابن سعد کے مطابق سلسلہ نبوت حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر کم و بیش 9 یا 10 واسطوں سے 1000 سال میں حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچا۔ علامہ ابن کثیر نے آپ علیہ السلام کا نسب نامہ یوں بیان کیا ہے کہ حضرت ابراہیم بن طارخ بن ناہور بن ساروغ بن راغب بن فالخ بن عابر بن شالح بن ارفخشد بن سام بن حضرت نوح علیہ السلام۔ ابن جریر بعض اہل کتاب کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے 3335 سال بعد پیدا ہوئے، جبکہ قاضی سلیمان منصور پوری کہتے ہیں کہ آپ کا زمانہ 2585 سال پیشتر کا ہے۔ آپ علیہ السلام کے نام کی وجہ تسمیہ کے بارے میں بائبل کا بیان ہے کہ اللہ رب العزت ان سے مخاطب ہو کر یوں کہتے ہیں، دیکھ میرا عہد تیرے ساتھ ہے اور تو بہت قوموں کا باپ ہوگا، اور تیرا نام ابرام نہیں ابراہام ہوگا، کیونکہ میں نے تجھے قوموں کا باپ بنایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جائے ولادت کے حوالے سے مورخین میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ ابن عساکر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام بابل میں پیدا ہوئے، تاہم امام بغوی کا چند اقوال کی روشنی میں کہنا ہے کہ آپ علیہ السلام اہواز کے علاقے سوس، بابل، کسکر یا حیران میں پیدا ہوئے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوسا کو حضرت ابراہیم کی جائے ولادت اور نمرود کا محل سکونت قرار دیا ہے۔ 6 صدی ہجری کے نامور سیاح ابن بطوطہ نے عراق کے شہر حلہ اور بغداد کے درمیان برس نامی جگہ کو آپ کی جائے ولادت کہا ہے، جبکہ تورات کے مطابق حضرت ابراہیم 2200 قبل مسیح میں عراق کے قصبہ ارب میں پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کے نام میں اختلاف مذکور ہے، تاہم تفسیر مظہری وغیرہ نے
तारीख साबित किया है और लिखा है कि आजर आप अलैहिस्सलाम का चचा था, क्योंकि अरब चचा को भी अब कहते थे। इब्न कसीर के मुताबिक आप अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम तारिख था। अहले किताब यही नाम बताते हैं और कहा जाता है कि आजर उसका लक़ब था, क्योंकि ये आजर नामी बुत की पूजा करता था। मौलाना अबुल कलाम आजाद सूरह अंबिया की तफसीर में लिखते हैं कि आप अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम तारिख था, जिसका इंतकाल बचपन में हो गया था। चचा ने परवरिश की थी और चूंकि वो मंदिर के पुजारियों में से था, इसलिए आवार के लक़ब से पुकारा जाता था। सही बुखारी की एक रिवायत इस तरह है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं बनी आदम के बेहतरीन खानदानों में चलता रहा, यहां तक कि मुझे उस खानदान में पैदा किया गया। यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आपके वालिदैन तक तमाम आबा व अजदाद मोमिनीन हैं। आप पाकीज़ा सुल्बों से पाकीज़ा रहमों और पाकीज़ा पुश्तों की तरफ मुंतकिल होते रहे हैं। इमाम राजी और दीगर सलफ का ख्याल है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद बुत परस्त नहीं थे, बल्कि मोमिन थे। सनम परस्ती और सनम फरोशी का कारोबार आप अलैहिस्सलाम के चचा करते थे, जिनका नाम आजर था। आप अलैहिस्सलाम पर 20 या 30 सहाइफ नाजिल किए गए। सुहफ़ इब्राहीम व मूसा, इस बात पर उलमा का इत्तिफाक है कि आप अलैहिस्सलाम पर रमज़ान की पहली तारीख को ये सहीफ़े नाजिल किए गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के होलिया मुबारक के हवाले से इमाम अहमद इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत करते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखा। हज़रत ईसा का रंग सुर्ख, बाल घुंघरियाले और सीना चौड़ा था, जबकि मूसा अलैहिस्सलाम गंदुमगू और जसीम थे। सहाबा किराम ने अर्ज किया, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ इशारा करते हुए फरमाया, अपने साहिब को देख लो। आप अलैहिस्सलाम बहुत ही नरम मिजाज, तहम्मुल वाले और अल्लाह की जानिब झुकने वाले थे। इन्ना इब्राहीम हलीमुन अव्वाहुम मुनीब। अल्लाह करीम ने आप अलैहिस्सलाम को खलीलुर रहमान का खिताब अता फरमाया। अत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला। मुस्तदरक लिल हाकिम में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोग कहेंगे, ए इब्राहीम, आप अल्लाह करीम के खलील हैं, आपकी खिल्लत का चर्चा आसमानों और ज़मीनों में है। हज़रत जुंदब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दुनियावी ज़िंदगी से पर्दा फरमाने से पहले इरशाद फरमाया, अल्लाह करीम ने मुझे अपना खलील बनाया, जैसा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलील बनाया। उबैद इब्न उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम लोगों की मेज़बानी बहुत ज़्यादा फरमाया करते थे। एक दिन किसी की तलाश में निकले कि हक़ के ज़ियाफ़त अदा करें, लेकिन कोई ना मिला। वापस घर तशरीफ़ लाए तो देखते हैं कि एक शख्स घर के अंदर खड़ा है। पूछा, अल्लाह के बंदे, मेरी इजाज़त के बगैर मेरे घर में कैसे घुस आए हो? उसने कहा कि मैं घर के मालिक की इजाजत से आया हूं। पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा कि मैं मौत का फरिश्ता हूं, मुझे अल्लाह करीम ने अपने एक बंदे के पास भेजा है कि मैं उसे खुशखबरी दूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसे अपना खलील बना लिया है। आपने पूछा कि वो खुशबख्त खुशनसीब कौन है? खुदा की कसम, अगर मुझे पता चल जाए तो मैं उसे ले आऊं और हमेशा अपने पड़ोस में रखूं, हत्ता कि मौत हमें जुदाई डाल दे। फरिश्ते ने कहा कि वो बंदे आप खुद ही हैं। आपने पूछा कि मुझे किस वजह से खलील बनाया गया है? फरिश्ते ने अर्ज की, वजह यह है कि आप लोगों को अताअत तो करते हैं, लेकिन उनसे लेते कुछ नहीं। अल मुस्तदरक में हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि इस्लाम के 30 हिस्से हैं और इस दीन में जिसको भी आजमाया गया उनमें से सिर्फ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम
मुकम्मल पूरे उतरे। उनका जिक्र मुबारक सूरत तौबा, सूरतुल अहज़ाब और सूरतुल मोमिनून में आया है। हजरत हसन बसरी से एक और रिवायत है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को 7 अशिया से आजमाया। सितारा, चांद, सूरज, आग, हिजरत, बेटे का ज़िबा करना, खतना करना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया व इब्राहीम अल्लज़ी वफ़ा, और इब्राहीम ने हक़ रिसालत व इताअत पूरा किया। इब्न कसीर लिखते हैं कि अपने रब के तमाम अहकामात की कमा हक़्क़ुहु पैरवी फरमाने पर अल्लाह करीम ने उन्हें अपना खलील बनाया। काजी अयाज लिखते हैं कि खलील वो है जो यकसू होकर ऐसा अल्लाह करीम की तरफ हो जाए कि उसके इंतका और मोहब्बत में कोई खलल वाक़े ना हो। तबक़ात इब्न साद में इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह करीम ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना दोस्त बनाया और नबूवत अता फरमाई, तो उस वक्त उनके 300 गुलाम थे। आप अलैहिस्सलाम ने उन सब को आज़ाद कर दिया और सब के सब इस्लाम ले आए। उनके पास लाठियां और डंडे होते थे और ये दुश्मनाने इस्लाम से इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हमरा लड़ा करते थे। दीन इस्लाम के मुख्तलिफ उमूर से आगही के लिए अभी सुनो न्यूज़ का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए।